ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ। ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਭੋੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਤਿਆ ਚਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਚਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੀਕਰਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਐਲਾਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਹੈਪੀ ਚੋਟੀਆਂ, ਰੋਹਿਤ ਗਰਬਾ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ BJP ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। -, ਜਿਹੜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। 50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ नहीं होने देंगे। किस तरह आज किसानों ने बीजेपी नेताओं का विरोध किया? देखो, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, हम दिल्ली के बॉर्डरों पे 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और MSP गारंटी कानून बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें ही हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि किसी भी हरियाणा में BJP JJP जहाँ सत्ताधारी लोगों का विरोध करना है, बिल्कुल शांतमय तरीके से काले झंडे दिखाने हैं। तो उसी के तहत आज जैसे ही हमारे भोड़का गांव के निवासियों को पता चला भी जहाँ जो जिला प्रधान आदित्य देवीलाल चौटाला है, उसका प्रोग्राम है, कार्यकर्ता की मीटिंग है, तो हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा इलाहाबाद में बना हुआ है, इलाहाबाद की बहुत हमारी किसान मजदूर की टीम बहुत मजबूत है। सुरिंदर सिंह सिद्धू जी, प्रकाश ममेरा जी, हैप्पी जी, भाटी साहब और सारे साथी, इनका हमारे ग्रुपों में मैसेज गया। जैसे हमारे किसानों के ग्रुप बने हुए हैं, मैसेज जाते ही गांव मल्लिका से गुरी सेखों हमारी टीम का हिस्सा है भारतीय किसान एकता का, तो सभी साथी जो नज़दीक लगते गांव के साथी हैं, सभी यहाँ भोड़का गांव में पहुँच गए। एक आप देख रहे हो कितनी बड़ी भारी बरसात हो रही है, लेकिन किसानों ने बरसात की परवाह किए बिना अपने हक और सच की लड़ाई के लिए, जो ये गद्दार लोग हैं किसान और मजदूरों के, रोज़ाना कहीं ना कहीं प्रोग्राम करके हमारे आंदोलन को, जो हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, लेकिन ये हरियाणा की सरकार चाहती है भी इनको हरियाणा में उलझाए रखें, तो इसलिए बार बार कभी सिरसा में, कभी हिसार, कभी जींद, कभी यमुनानगर, अलग अलग प्रोग्राम करके हमारे आंदोलन को बांटना चाहते हैं। लेकिन अब हमारे आंदोलनकारी उन्होंने भी रणनीति बदल ली है। जिस भी जगह प्रोग्राम होता है उसी एरिया के किसान बहुत जल्दी, हमारे ग्रुप बने हुए किसानों के, उसमें मैसेज डलते ही किसान इकट्ठे हो जाते हैं और विरोध के लिए आ जाते हैं। सिरसा जिला के अंदर इलाहाबाद ये एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे BJP नेताओं का ज़्यादातर विरोध किया जाता है और BJP के नेता यहाँ पे ज़्यादातर आ रहे हैं। देखो, आ तो सभी जगह रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको भी पता क्यों आ रहे हैं, हमारे को पता है कि जनाधार बिल्कुल खो चुके हैं। यहाँ उपचुनाव है, इसलिए ये थोड़ा बहुत देखते हैं भी कहीं पैर रखने की जगह मिल जाए, लेकिन किसानों और मजदूर की लाशों के ऊपर पैर रखने का इनको कोई हक नहीं है। हमारे 550 से 600 के बीच
जो किसान सरहदों पर शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को देखते हुए, उनकी शहीदी को देखते हुए किसान और मजदूर में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि इन लोगों के मुंह कोई नहीं लगेगा। कहीं भी किसी भी जगह, हरियाणा में, पूरे देश में ही विरोध हो रहा है, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सत्ता है। जब जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनके बड़े मंत्री हैं, उनका ही हम प्रोग्राम नहीं होने देते, तो ये तो एक छोटे छोटे उनके प्यादे हैं, आदित्य चौटाला जैसे छोटे छोटे प्यादे हैं, उनको कौन गांव में घुसने देगा। इसलिए इनका विरोध हमारे सभी साथियों के सहयोग से इनका विरोध चलता रहेगा, किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और बिल्कुल शांतमय तरीके से। आज भी देखा होगा आपने, भी बरसात हो रही है लेकिन हमारे साथी शांति से उरली तरफ खड़े होकर, पुलिस भी वाटर कैनन बना ली, इन्होंने बाहरी पुलिस बल मंगा लिया, लेकिन हमारे साथी बिल्कुल शांतमय तरीके से विरोध कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बता रहे हैं कि पिछले रणवीर गंगवा के पर यानी हमला करने वाले 5 साथियों के आप पर भी आरोप लगे थे, बारूखेड़ा जी पर भी आरोप लगे थे, आपको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था बात के अंदर। क्या संयुक्त किसान मोर्चा भी एक है या 2 फाड़ होने का काम कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को डिस्चार्ज नहीं किया, शायद आपको पूरा ज्ञान नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा आपने 2 साथियों को किया था, आपने किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अनुशासनहीनता करेगा, देखो संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ी ताकत है। देश की जो किसान और मजदूर की, आम जन की, जन जन की लड़ाई लड़ रहा है, वो पूरे देश को बचाने की, देश के अन्नदाता को, अन्न खाने वाले को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो वो उसके तहत कोई भी प्रोग्राम, किससे गलती, मेरे से भी हो सकती है, प्रकाश जी से हो सकती है, किसी से हो सकती है, जिससे गलती होगी उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको संयुक्त मोर्चा सजा देता है, लेकिन वो हिस्सा देता है। कोई ऐसी बात नहीं है, हम मिलकर लड़ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा ना 2 था, ना है, ना होगा। ये लड़ाई हमारी केंद्र सरकार से जारी रहेगी, तीनों कलाली कानून रद्द होने तक। लेकिन आपने देखा होगा भी 5 साथियों की रिहाई है, जो उसका जश्न बहुत बड़ा था। हरियाणा सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था भी राजद्रोह जैसे मुकदमों में उन साथियों को रिहाई कराई, उनकी रिहाई को फिक्का करने के लिए कुछ सरकारी एजेंट छोड़ दिए गए, वो दुविधा फैलाने के लिए पूरे एरिया में भी ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक हमारे सभी संयुक्त मोर्चा के साथियों की जो बात थी, जब बलदेव सिंह सिरसा जी अमरानंद पर बैठे थे, तो ये एक ही नारा था, जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होते तब तक हम उठेंगे नहीं। जहाँ तो हमारे साथियों की रिहाई होगी, जहाँ बलदेव सिंह सिरसा की बधाई होगी, वो प्राण त्यागेंगे। इसलिए हमारा संयुक्त मोर्चा एक था। अब देखो ये अलग अलग जत्थेबंदी के हैं, लेकिन इलाहाबाद में कितना सिस्टम से सारे मिलकर, कभी भी कहीं विरोध होता है, कहीं प्रोग्राम होता है, तो सारे एक होते हैं। इसलिए कोई 2 फाड़ नहीं, ना होगा, क्योंकि 550 से ऊपर जत्थेबंदियां जो आंदोलन लड़ रही हैं, एक होकर लड़ रही हैं। क्या ये भी आपकी भी किसान मोर्चा की या संयुक्त किसान मोर्चा की ये हो सकती है कि इलाहाबाद जो का इलेक्शन आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं आप संयुक्त किसान मोर्चा भी पिछले दिनों में बयान भी आया था कि अपना कैंडिडेट उतार सकता है, और 6 महीने हो गए उपचुनाव होने वाला था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी नहीं हो पाई? बिल्कुल नहीं, हमारी लड़ाई तीनों काले कानून रद्द कराने की है। राजनीति सबका हक है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता, हमारा जो काम है वो तीनों काले कानून रद्द कराना और एमएसपी गारंटी कानून बनाना। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे से बिल्कुल क्लियर कट है कि जब तक हमारी जीत नहीं होती, हम तीनों काले कानून रद्द नहीं करते, हमारा कोई भी साथी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इलेक्शन में भाग नहीं लेगा, एक्शन में सपोर्ट नहीं करेगा। लखविंदर जी, एक आपका यानी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आते हैं कि हम राजनीतिता की एंट्री बंद है हमारे यानी मंच संचालन पर जी, तो लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि आपके ही स्टेज पर राजनीतिक लोग भी पहुंचते हैं, लोगों को संबोधित भी करते हैं। क्या संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बात पर अड़िग नहीं है? बिल्कुल ठीक है, आप नाम बताओ, हम स्पष्टीकरण देंगे। कोई नहीं जाता। सबसे बड़ा देखो त्याग दिया है किसानी के लिए, अभय सिंह चौटाला ने किया है, इस्तीफा दिया है। उसका औचित्य कोई मर्जी हो, उसका निशाना कोई मर्जी हो, लेकिन सबसे पहला जो इस्तीफा दिया अभय सिंह दिया है। आज तक बताओ कौन से स्टेज से अभय सिंह बोला है? इससे बड़ा तो कोई नेता नहीं हो सकता जो इस्तीफा किसानों के लिए दिया और आज तक किसानों के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसको स्टेज नहीं दिया गया। किसी भी राजनेता को स्टेज ना दिया गया, ना दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे आंदोलन की पवित्रता है। ये पहले दिन से ही तय है, जो संयुक्त मोर्चे ने तय किया है भी किसी राजनेता को, हम हमारे साथी हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, आए बैठें, लेकिन मंच नहीं संचालन करने दिया जाएगा, वो हम अड़िग हैं।